Hello friends, let's start revision of chapter 4, that is MOA and AOA. Define MOA. Section 2 clause 56. It means memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time as per any previous company law or this act. On the other hand, AOA is defined under 2 clause 5, which means articles of association of a company as originally framed or as altered from time to time as per any previous company law or this act. The formats of MOA and AOA are given under Schedule 1 of Companies Act 2013. Table A, B, C, D, E is regarding MOA and Table F, G, H, I, J are regarding AOA. Next, purpose of MOA and AOA. There are two purposes of MOA. First, it defines what a company can do and what it cannot do. That means the power and range of activities. Secondly, whether the contract is within its objects. That means if it has stated a particular object, what specific object can it enter into. Then the articles of association has three purposes. First, the rules and regulations by the company for the internal affairs and management. Then secondly, defining the duties, rights and powers of the governing body, that is the directors. And then the mode and form in which the business can be carried out. For example, the documentation, the resolutions to be passed, etc. Now, an important note coming up regarding MOA. That is, first of all, company cannot deviate from the MOA. If it does, it will be treated as Ultra Vires Act. Ultra Vires means beyond the powers of the entity. Thirdly, when registered with ROC, the MOA and AOA becomes a public document under section 399. Alright, coming to section 4 regarding Memorandum of Association. There are 5 clauses in Memorandum of Association. First being the name clause, then is the situation clause, then is object clause, fourth liability clause, and fifth capital clause. The first clause is name clause, in which it is stated that the last words should be limited or private limited. That means at the end of the name of the company, the words limited or private limited shall appear. If it is a company limited, yes. Then the second is situation clause. Situation clause states the state or the union territory where the registered office of the company will be situated. So if the registered office of the company is in Noida, then it will state that the registered office of the company shall be situated in the state of Uttar Pradesh. On the other hand, if the registered office of the company is in Chandigarh, then it shall be stated that the registered office of the company shall be situated in the union territory of Chandigarh. Okay, then next clause is object clause. That is the objects to be pursued on the incorporation and the matters which are necessary for the continuance of the objects specified. Next is the liability clause. Yes, the company shall state whether the liability of the members is limited or unlimited. If it is limited, then it can be limited by shares or limited by guarantee. In case limited by shares, it shall state the amount unpaid. On the other hand, that if the company is limited by guarantee, it shall state that the members have to contribute. Yes, that they guarantee to contribute towards the assets of the company and towards the cost, charges and expenses of winding up. When they will be contributing, I hope you all remember that in case of a company having guarantee as their liability, then they have to contribute only at the time of winding up. Now one has to see that when does the winding up takes place. Then if the winding up is within the time period when he is the member, then he has to pay, and the member may even promise to pay within 1 year of him ceasing to be a member, but for liabilities which were incurred by the company when he was a member. Therefore, once the member has ceased to be the member, that is, he has sold his shares, and after that company incurs any liability or enters into any contract, then he shall not be liable.
Next, friends, capital clause. The capital clause states three things. First of all, the total amount of share capital, that means the authorized share capital, then the nominal value per share and the number of shares. For example, it can be said that the authorized share capital of the company shall be rupees 10 lakhs, consisting of 1 lakh equity shares of rupees 10 each. Next, in case of an OPC, that is one person company, it shall also have a nominee clause which shall state the name of the person who, in case of death of the subscriber, shall become the member of OPC. So that was about section 4. Next, we come to alteration of memorandum given under section 13. 13 याद करने के लिए we can take the advantage of the first three clauses. 1 से 3 first three clauses of memorandum कौन से हैं? First is the name clause, second is the situation clause, and the third is the object clause. So name clause, situation clause, and object clause, the first three clauses. So alteration of MOA, there is 1-3. Then which resolution? Let's start, friends. Section 13 subsection 1 states that one has to pass SR and follow the procedure under this section. Okay, so let's start with the first alteration, that is alteration of name clause. So step 1, SR shall be passed for changing the name of the company. Let's say Hindustan Lever Limited, yes, to Unilever Limited, or Star News to ABP News. But if only it requires the removal or addition of the word private, then only SR is to be passed. Therefore, if there is a proper change in name of the company, ROC permission and SR is required. But only if the word private is to be added or removed, then only SR is required. ROC approval is not required. Then change in name will not be allowed if the company has defaulted in any of the two. First, filing of annual return, FS, or any document with ROC, or repayment of matured deposits, debentures, or interest due on them. Therefore, change in name can only be allowed once these defaults have been rectified by the company. Next, friends, company needs to file with ROC. Number 1, SR passed plus ROC approval plus form number INC 24, that is an application for alteration of the name clause. Then ROC shall enter the new name in the register of companies and issue a fresh certificate of incorporation in the prescribed form, which is form number INC 25. Okay, let's move on to the next alteration, which is alteration of situation clause. Situation clause from one state to another state. Why only covering this situation? We all know कि जो आपका MOA होता है उसमें हम स्टेट करते हैं द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी शैल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ या यूनियन टेरिटरी ऑफ, एंड जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम है. देयरफॉर ऑल्टरेशन ऑफ MOA का मतलब क्या होगा? जब स्टेट या यूनियन टेरिटरी बदल रही होगी. So therefore section 13 covers only the situation where alteration is taking place from one state to another state. Procedure. Step 1, SR shall be passed. Then application shall be made to RD, Regional Director, in prescribed form, that is form INC 23, along with copy of notice calling the general meeting along with the explanatory statement, plus SR shall be filed and a copy of MOA and AOA. Let's repeat. First, SR passed. Secondly, application to RD. Application to RD shall be annexed with what? Copy of notice calling general meeting and explanatory statement, plus SR passed, and then copy of MOA and AOA. Next, RD before passing any order shall satisfy himself within 60 days that number 1, that the alteration has the consent of whom? The interested parties, that is the stakeholders, you can say. Example, creditors, debenture holders, or other persons concerned. Or
sufficient provision has been made by the company for due discharge of its debts or obligations, or adequate security has been provided. So तीन बातें, पहला कंसेंट ऑब्टेन करा है, या फिर सफिशिएंट प्रोविजन कर दिया है, या फिर तीसरा एडिक्वेट सिक्योरिटी दे दी गई है. नेक्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू पॉइंट आया, इफ कंपनी इज NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, then it shall obtain NOC from RBI. NOC is no objection certificate, and annex such NOC with the application to CG. That means CG को application देनी है along with NOC जो RBI से आपने obtain करा. That means पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, पहले NOC लेना पड़ेगा RBI से कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, एंड इसकी कॉपी किसको सबमिट करनी होगी, CG को along with the application. अगली बात, जब CG सुनवाई करेगी तो उससे कम से कम 14 days बिफोर, दैट मीन्स एटलीस्ट 14 days बिफोर द हियरिंग, तीन काम करने हैं. एडवर्टाइज एप्लीकेशन इन 2 न्यूज़पेपर्स. हमें पता है 2 न्यूज़पेपर आते ही कुछ कुछ होता है, दैट मीन्स एक अंग्रेजी और एक वर्नैकुलर लैंग्वेज वे रजिस्टर्ड ऑफिस. देन सर्व इंडिविजुअल नोटिसेस, हर एक जने को अलग से नोटिस जाएगा. कौन जना, डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर. अगली बात, सर्विस नोटिस टू हुम, टू ROC एंड रेगुलेटरी बॉडी फॉर कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट. सो क्या करना है बच्चों, तीन, सबसे पहला एडवर्टाइज करना है न्यूज़पेपर में, देन नोटिसेस जाने डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को, और तीसरी बात ROC और रेगुलेटरी बॉडी को भी नोटिस जाएंगे. शिफ्टिंग अलाउ नहीं करी जाएगी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इफ एनी आई क्या आई सर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी. इंक्वायरी, inspection or investigation is pending against the company. However, shifting will be allowed if after such inquiry it is found कि कोई भी चीज कंपनी के अगेंस्ट प्रूव नहीं हुई. Then certified copy of the order of RD approving the alteration shall be filed with ROC of both the states. Both states, जहां से जा रहे हैं और जहां पे आ रहे हैं, तो दोनों स्टेट्स. फॉर्म नंबर INC 28, दो स्टेट 28. ओके, कितने दिनों में, नॉर्मल टाइम पीरियड विद इन 30 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी. एंड ROC क्या करेगा, जहां पे आपने RO शिफ्ट किया है, दैट मीन्स न्यू ROC, ही शैल इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिकेटिंग द ऑल्ट्रेशन. सो फ्रेंड्स, ये आपका ऑल्ट्रेशन था ऑफ व्हाट, सिचुएशन क्लॉज. थर्ड आपका आ रहा है ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज. दो कवर करवा रहा हूं मैं यहां पे आपको, एक नॉर्मल और दूसरा अगर एक स्पेसिफिक केस है. पहले एक जनरल नॉर्मल वाला केस करते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स में कुछ लिखा है और हमें उसे ऑल्टर करना है. ओके, कौन सा है पहला सर, सबसे पहले क्या पास होता है हमेशा, BR शैल बी पास. कहां पे पास होगा, बोर्ड मीटिंग में पास होगा. देन व्हाट शैल बी पास, SR शैल बी पास. अगर कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड भी है बट हैविंग मेंबर्स मोर देन 200, सो ये SR पास होगा बाय पोस्टल बैलेट. नेक्स्ट थर्ड स्टेप, ROC के पास फाइल करना है. क्या फाइल करना है, SR प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स. कितने दिनों में, विद इन 30 days ऑफ पासिंग SR, दैट इज द नॉर्मल टाइम पीरियड. देन सच फॉर्म शैल बी साइंड डिजिटली बाय whom, by the persons named as MD, director, manager or secretary authorized by the board, and such form shall be certified digitally by CA और हमारे छोटे भाई बहन CS CMA in practice. CA CS CMA in practice, इनमें से कोई एक से हम साइन करवा लेंगे. सो ROC के पास क्या क्या फाइल करना है, रिपीट करिए, 4. SR with explanatory statement within how many days, 30 days, digitally signed by MD, director, manager or secretary authorized, and certified digitally by CA CS CMA in practice. Is it clear? चलो जी, next point.
अगला पॉइंट है चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ अ कंपनी विच हैज रेज मनी थ्रू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्पेसिफिक केस आ गया, अगर एक कंपनी ने पैसा रेज करा है थ्रू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, दैट मीन्स ये कौन सी कंपनी के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होगा? पब्लिक कंपनी के लिए, क्योंकि सिर्फ पब्लिक कंपनी ही पब्लिक ऑफर कर सकती है, राइट? प्रोस्पेक्टस इशू करने का मतलब पब्लिक ऑफर करना। ओके, सो कंपनी विच हैज रेज मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड हैज एनी अनयूटिलाइज अमाउंट आउट ऑफ सच मनी एंड वो अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है। दैट मीन्स अगर कंपनी ने 100 करोड़ रुपए प्रोस्पेक्टस के थ्रू रेज करे थे और उसमें 60 करोड़ में ही वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, अब जो बैलेंस 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 करोड़ जो बचा है, अगर उसको किसी और पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, दैट मीन्स चेंज इन ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, तो प्रोसीजर क्या होगा? नंबर 1, पास SR बाय पोस्टल बैलेट एंड पब्लिश एडवर्टाइजमेंट ऑफ ईच रेजोल्यूशन एंड ऑल्सो पब्लिश इट ऑन द वेबसाइट। तो पहला SR बाय पोस्टल बैलेट प्लस पब्लिशिंग कहाँ पे? न्यूज़पेपर में भी और वेबसाइट पे भी। अगली बात, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स जो मना करें, ना 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 ना, उनको क्या देनी होगी? अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट। बाय हुम? बाय प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स जो मान गए एज पर सेबी रेगुलेशन। सो अगली बात दोस्तों, एक सेक्शन आपने छोटा सा करा था, ROC टू सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन ऑन ऑल्टरेशन ऑफ MOA। जो भी ऑल्टरेशन आपके MOA में होगी उसको ठप्पा सर्टिफाई कौन करेगा? ROC करेगा। सो ऑल्टरेशन शैल नॉट बी वैलिड अनलेस ROC हैज रजिस्टर्ड द ऑल्टरेशन, दैट मीन्स अपने रजिस्टर में उसने नोट कर लिया है, एंड सर्टिफाइड रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग SR। ओके, नेक्स्ट बात, कंपनी टू इश्यू ऑल्टर्ड MOA। ये 15 सबसेक्शन 2 में किया था आपने कि वंस ऑल्टर्ड MOA बन गया है, अपडेटेड आ गया है, तो क्या पुराना MOA इशू कर सकते हैं? द कंपनी कैन नॉट इशू ऑल्टर्ड अनऑल्टर्ड, ये पुराना जो है ओल्ड MOA AOA। अगर कंपनी ने अनऑल्टर्ड MOA इशू कर दिया, देन इट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ ₹1000 पर कॉपी। जितनी आपने पुरानी कॉपीज इशू करी उसकी 1000 रुपये पर कॉपी आपकी पेनल्टी पड़ जाएगी। ओके, इज इट क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट दोस्तों, अब हम आ जाते हैं सेक्शन 4 पे, नेम क्लॉज पे। सर अभी नेम क्लॉज किया था, आपको याद हो? नेम क्लॉज सेक्शन 4 के रिगार्डिंग कर रहे हैं, वो था ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम। अब इसी में 4 सबसेक्शन 2 दे रखा है विच इज रिगार्डिंग नेम अनडिजायरेबल। सो हम कौन सी सिचुएशन से डील करें? हम नेम अनडिजायरेबल। सो वेयर द नेम स्टेटेड इन द MOA इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स, सेम है या सिमिलर है, मिलता जुलता है। कौन सा जुलता है? मिलता जुलता है विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और the name if permitted will constitute an offense under any law or undesirable in the opinion of CG। तो इसको पूरे को क्या माना जाएगा? अनडिजायरेबल माना जाएगा। सो हम सिंपली यही बोलेंगे कि यस, नेम अनडिजायरेबल है अगर सेम या सिमिलर हो एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से, या फिर अगर अलाउ कर दिया जाए तो ऑफेंस है, या फिर CG के ओपिनियन में अनडिजायरेबल है। नेक्स्ट, हमने इसके बाद रूल 8 में क्लास में काफ़ी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप उनको ढंग से गो थ्रू कर लें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 4 सबसेक्शन 3, इट शैल नॉट गिव एन इम्प्रेशन ऑफ गवर्नमेंट पैट्रोनेज। अगली कंडीशन क्या थी? इट शैल नॉट गिव इम्प्रेशन ऑफ गवर्नमेंट पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब सपोर्ट। A company shall not be registered with a name which contains any word or expression, right, which is likely to give an impression of the company enjoying the patronage of CG, SG, local authority or a corporate or body constituted by CG or SG। That means कोई भी कंपनी ऐसे नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जिसमें कोई ऐसा वर्ड या एक्सप्रेशन वो यूज़ करें जिससे ऐसा प्रतीत हो कि कंपनी को सपोर्ट है CG, SG या लोकल अथॉरिटी की। हाँ जी,
और कोई सा भी और वर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, आप एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। बोर्ड वर्ड यूज़ करना है, ब्यूरो, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, नेशन, म्युनिसिपल, फेडरल, अथॉरिटी, ये सब अगर आपको वर्ड यूज़ करने हैं तो आपको पहले सीजी से अप्रूवल लेना होगा। सो दोस्तों 4 सबसेक्शन 2 और 4 सबसेक्शन 3 किसके रिगार्डिंग? 4 सबसेक्शन 2 नेम अनडिजायरेबल है, उसी में आपने कहा कि भैया एग्जिस्टिंग कंपनी से नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए और सेम नहीं होना चाहिए, या फिर ऑफेंस हो या फिर सीजी के हिसाब से अनडिजायरेबल हो। अगला, गवर्नमेंट पैट्रोनेज की कोई इंडिकेशन ना हो। अगला आपने करा रिजर्वेशन ऑफ नेम। रिजर्वेशन ऑफ नेम का मतलब कि कुछ टाइम के लिए आप अपना कोई नाम होल्ड करवा सकते हो। हाँ जी, आपको पसंद आ गया नाम तो आप वो होल्ड करवाना चाहते हो। ओके, आप श्योर नहीं हो बट आप कहते हो हाँ जी चलो थोड़े टाइम के लिए कर दो जब तक हम बाकी प्रोसीजर कर लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्या होगा? एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर INC1 विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। ये फीस कितनी है? लगभग 500 रुपये टू ROC फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। किसके लिए? नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी, या तो अगर आप न्यू कंपनी बना रहे हैं, और नेम टू विच द कंपनी प्रपोजेस टू चेंज, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स नेम। सिंपल बात, एप्लीकेशन टू ROC इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। अगली बात दोस्तों, ओके, जब एप्लीकेशन आएगी ROC में रिजर्व द नेम फॉर हाउ मच डेज? फॉर 60 days फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, इफ after reservation it is found that the name is wrong, that means what? जो document submit करे हैं is wrong, then देखना पड़ेगा 2 बातें। पहला क्या था? कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है या नहीं हुई है, नॉट येट इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। इफ नॉट येट इनकॉर्पोरेटेड देन क्या करेंगे? रिजर्व नेम शैल बी कैंसिल। भैया रिजर्वेशन हटा देंगे, अगर किसी और ने लाइन में कतार में लगा हुआ है तो उसको दिया जा सकता है, एंड एप्लीकेंट पे पेनल्टी लगेगी अप टू ₹1 लाख। ऑन द अदर हैंड अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो भैया कुछ थोड़ा सा रिलीफ है। बोल रहे हैं कि कंपनी को डायरेक्ट करा जाएगा कि आप नाम चेंज करो विद इन 3 months, और कंपनी को इसकी कंप्लायंस के लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास करना होगा? OR। याद है OR क्यों? भैया गवर्नमेंट अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया है तो अब उसको फॉलो कंप्लाई करना है, तो SR की जरूरत नहीं है, क्या पास हो जाएगा? OR। ऑन द अदर हैंड ROC और क्या कर सकता है? नाम हटा भी सकता है फ्रॉम द रजिस्टर, एंड ऑल्सो पिटिशन फाइल करी जा सकती है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ सच कंपनी। डन फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन 16 विच इज रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। ये सिचुएशन क्या थी? अगर किसी वजह से, किसी भी वजह से, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी की गलती हो या किसी भी और नेग्लिजेंस की वजह से, कंपनी एक ऐसे नाम से रजिस्टर हो गई जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। एग्जिस्टेंस का मतलब कंपनी अंडर दिस एक्ट या फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था, तो फिर क्या होगा? तो जरा करते हैं। इफ ड्यू टू नेग्लिजेंस और एनी अदर रीजन, लापरवाही की वजह से, किसी भी और रीजन की वजह से, अ कंपनी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स नई कंपनी बन रही है, और ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय न्यू नेम, ये किस पे लगेगा? एग्जिस्टिंग कंपनी पे, इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इन द ओपिनियन ऑफ हुम, RD की बात हो रही है, इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ओके, कौन से एक्ट में? ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। देन RD में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम। हाँ जी, RD डायरेक्ट कर देगा अपना नाम बदलो भैया। अच्छा, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ नाम मिलता जुलता है या सेम है तो कितना टाइम मिलेगा? 3 महीने, और OR पास करना होगा। बट अगर नाम किससे सिमिलर या सेम है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो कितना टाइम है? 6 months। रीजंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास। नेक्स्ट पॉइंट, नोटिस टू ROC। हाँ जी, नाम बदला है तो किसको भी इन्फॉर्म करोगे? कंपनी की लुगाई, ROC, विद इन 15 days फ्रॉम डेट ऑफ चेंज। ऑर्डर RD का फाइल करेंगे, एंड हु शैल मेक द चेंजेस, पक्का, सो ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड MOA। तो ROC का क्या क्या फाइल करोगे भैया? एक तो RD का ऑर्डर, दूसरी बात OR जो हमने पास किया, कितने दिन में फाइल करना है? विद इन 15 days। एंड ROC क्या इशू कर देगा? COI एंड MOA जो ऑल्टर्ड होगा।
देन नॉन कंप्लायंस की पेनल्टीज है, कंपनी पे फाइन, फ्लैट डिस्काउंट है, आई मीन फाइन है 1000 पर डे का फॉर कंटिन्यू डिफॉल्ट, और ऑफिसर पे कितना है, कम से कम 5000 रुपये बट मैक्सिमम 1,00,000 रुपये। ओके, चलो जी नेक्स्ट अगले क्लॉज पर आते हैं, सेक्शन पे आते हैं दोस्तों। सिचुएशन क्लॉज का सेक्शन आप सेक्शन 4 से भी कर रहे थे और सेक्शन 12 मेन था। सो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, सिंपल सी बात वही कि जो स्टेटमेंट लिखी होती है दैट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर ये लिखा है सो यही बात लिखी हुई थी वहां पे, एवरी कंपनी शैल मेंशन इन इट्स एमओए द स्टेट in which the registered office is to be situated. Okay. Section 12 क्या कहता है, company shall maintain a registered office, किस लिए भैया, that means what is the importance of registered office? Number 1, receiving, acknowledging all notices and communications, receiving, acknowledging all notices and communications, जो भी letters वगैरह आएंगे अथॉरिटीज़ वगैरह से वो कहाँ पे रिसीव करेंगे। दूसरा, डिटरमाइनिंग द डोमिसाइल एंड नेशनैलिटी, कौन सी मिसाइल, डोमिसाइल, DOMICILE, डोमिसाइल, राइट, ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन को डोमिसाइल बोला जाता है, एंड डिटरमाइनिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ऑफ कोर्स जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहीं से ही ज्यूरिसडिक्शन तय होगी कि हाँ जी कौन सी जगह आपकी लिटिगेशन जा सकती है। तो 3 पर्पस रजिस्टर्ड ऑफिस के, पहला रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग नोटिसेज एंड कम्युनिकेशन, दूसरा डोमिसाइल एंड नेशनैलिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, हाँ जी, टाइम फॉर मेंटेनिंग रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 15 days of date of incorporation. Then also furnishing the verification details to ROC within normal time period. Normal time period कितना है, 30 days. Okay. चलो जी नेक्स्ट, आपने एक बात करी थी लेबलिंग ऑफ कंपनी। लेबलिंग ऑफ कंपनी क्या था कि अगर आप कहीं कंपनी खोलते हैं तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, बोर्ड वगैरह लगवाना होगा या वहाँ पे पेंट बाहर करवाओगे कि ये कंपनी का नाम है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है और ये हमारे ब्रांच का एड्रेस है, प्लस जो भी आप स्टैम्प वगैरह बनवाओगे अगर कॉमन सील, तो उस पर भी आपका पुरानी कंपनी का नाम आना चाहिए और जितने भी लेटर हेड्स होंगे वहाँ पे भी डिटेल्स आएंगी कंपनी की। कौन सी डिटेल्स, एज डिस्कस्ड। देन फर्स्ट प्रोवाइजो था नेम चेंज, इफ द कंपनी हैज चेंजेस नेम ड्यूरिंग द लास्ट 2 years तो उसे पुतवाना, गढ़वाना, छपवाना, याद है पुतवाना मतलब पेंट अफिक्स प्रिंट, सो इट शैल पेंट अफिक्स प्रिंट सच नेम सो चेंज्ड। कितने टाइम में, लास्ट 2 साल में जितने भी नाम चेंज करे हैं वो सब मेंशन करने होंगे। क्यों, ताकि एक ट्रेल लोगों को पता लगे कि अच्छा ये ही वो पुरानी कंपनी थी, ओके पहले इसका नाम ये था अब ये हो गया है। चलो जी नेक्स्ट, सेकेंड प्रोवाइजो जो ओपीसी पे लगता था कि हाँ जी ओपीसी अगर है तो आपको अपनी कंपनी के जो नाम बोर्ड वगैरह लगाओगे वहाँ पे साथ में क्या लिखना पड़ेगा, 1 person कंपनी बिलो द नेम ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी कम टू सेक्शन 12 सब सेक्शन 5, किसके रिगार्डिंग है, स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम 1 city town village to another city town village। हाँ जी, इसका मतलब हम कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, सेम स्टेट है, उसी स्टेट में एक सिटी से दूसरी सिटी या एक टाउन से दूसरे टाउन या एक विलेज टू दूसरे विलेज हम शिफ्ट कर रहे हैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस। हमने एग्जाम्पल लिया था लखनऊ और नोएडा का जो कि यूपी में ही पड़ते हैं। So from one city town village to another city town village but within the same state, that means जिसके ROC सेम है जिस स्टेट के। Now इसके लिए प्रोसीजर पहला क्या होगा बताइए, बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन क्या फिक्स करी जाएगी, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग, देन नोटिस दिया जाएगा, यस याद आया, TEA, टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन, एक्सप्लेनेटरी स्टेटम एंड एजेंडा ऑफ मीटिंग। फिर क्या होगा,
जनरल मीटिंग होगी सर, वहां पे क्या पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। लिस्टेड कंपनी अगर है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी नोटिस भेजना है, 3 कॉपीज ऑफ नोटिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग। अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो कैसे पास होगा रेजोल्यूशन? बाय पोस्टल बैलेट। देन नोटिस देना है आरओसी को ऑफ एवरी चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट शैल बी गिवन विद इन 15 डेज। कितने दिनों में? 15 डेज में। सो दोस्तों याद रखने वाली बात, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग, वहां पे रेजोल्यूशन पास, डेट टाइम प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग, फिर नोटिस जाएगा। अगली बात, मीटिंग जो होगी जनरल मीटिंग एसआर पास होगा, स्टॉक एक्सचेंजेस को भी इंफॉर्मेशन जाएगी अगर लिस्टेड है, और आरओसी को चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस की इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। कितने दिनों में? विद इन 15 डेज। ओके, नाउ कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन आया था जो कि सिर्फ 2 स्टेट्स पे लग रहा है। वन इज महाराष्ट्र एंड द अदर इज तमिलनाडु। कौन सा? महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। याद करिए, मुंबई और पुणे में 2 आरओसी हैं, राइट, और तमिलनाडु में भी 2 आरओसी हैं, वन इन चेन्नई एंड द अदर इज कोयम्बटूर। सो दिस इज रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस from one ROC to another ROC but within the same state लेकिन from jurisdiction of one ROC to another ROC। so ये applicably किन 2 states पे होगा? महाराष्ट्र और, बताइए, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र में कहां पे? मुंबई एंड पुणे, और तमिलनाडु में कहां? चेन्नई एंड कोयम्बटूर। ध्यान से, चेन्नई एंड कोयम्बटूर। नाउ सबसे पहले क्या पास करना होगा? एसआर पास करना होगा एंड एप्लीकेशन देनी होगी आरडी को। आरडी वही कंफर्म करेगा, यस, एंड कम्युनिकेट कर देगा अपनी कंफर्मेशन विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, अब इसके बाद हमें आरओसी के पास फाइल करने के लिए टाइम कितना दिया गया? 60 डेज दिए गए हैं। क्या क्या? आरडी की कंफर्मेशन एंड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड एमओए। ठीक, देन क्यों? याद करिए, वो स्टेट आ जाएगा बीच में भैया कि हम यहां पे शिफ्ट हो गए। आरओसी शैल रजिस्टर एंड सर्टिफाई द चेंज विद इन 30 डेज ऑफ फाइलिंग द कंफर्मेशन। ओके, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले आप क्या करोगे? एसआर पास करोगे, फिर एप्लीकेशन टू आरडी इन फॉर्म नंबर INC 23, अगर याद रहे याद करिए, INC 23 दूसरी से तीसरी जगह जा रहे हैं। देन आरडी कंफर्म करेगा ऑर्डर, यस, कम्युनिकेशन कब तक आ जानी चाहिए? विद इन 30 डेज, एंड हमारे पास टाइम कितना है? विद इन 60 डेज, एंड आरओसी के पास अगेन टाइम हमें इन्फॉर्म करने का कितना है? 30 डेज। सो फ्रेंड्स, ये आपके ऑल्टरेशन थे अभी तक। नेक्स्ट आपका आया एक सेक्शन 6 जो कि सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं था, याद करिए पूरे ही एक्ट के लिए है। एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एटसेट्रा। इसका हमने एक जनरल प्रिंसिपल समझा था कि भैया नोबडी इज अबव लॉ, नोबडी इज अबव लॉ। तो सिंपल सी बात कि अगर हम एक कंपनी होते हुए अपने मेमोरेंडम में, अपने आर्टिकल्स में, या किसी अग्रीमेंट के थ्रू, या कोई रेजोल्यूशन पास करके कोई ऐसी बात लिख दे जो कि एक्ट के साथ कॉन्ट्रवीन करती है, सो वो वॉइड होगा। क्या वॉइड होगा? मेमोरेंडम में वो पॉइंट, आर्टिकल में, अग्रीमेंट में, या रेजोल्यूशन में। इज इट क्लियर? सो एक्ट टू ओवरराइड, MAAR, M मेमोरेंडम, A आर्टिकल, A अग्रीमेंट एंड R रेजोल्यूशन। इज इट क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट आपने करा ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन किसका? ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज, रिडक्शन नहीं, ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज। बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपके पास सपोजली 1000 शेयर है 10 रुपए ईच। दैट मीन्स आपके पास टोटल कितने के शेयर्स हैं? 10 into 1000, 10,000 के। तो अब ये 10,000 एज इट इज ही रह गया हमारे पास, लेकिन 10 into 1000 को आप चेंज करे जा रहे हो बार बार। हाँ जी, क्या कर लिया? 100 into 100 कर लिया, या 1000 into 10 कर दिया, उल्टा कर दिया बिल्कुल। यस और नो? तो दिस इज ऑल्ट्रेशन। दैट मीन्स जो शेयर होल्डर है उसकी लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जिस तरह से वो होल्ड कर रहा है, शेयर ज्यादा हुए या कम कर दिए, उनकी नॉमिनल वैल्यू घटा दी या बढ़ा दी, सिर्फ उसमें फर्क आया। सो उसके 4 तरीके थे।
पहला था ऑल्ट्रेशन का इंक्रीज द ऑथराइज शेयर कैपिटल, याद करिए इंक्रीजिंग द ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्या उससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की लाइबिलिटी पे फर्क पड़ेगा? नहीं। अगली बात, कंसोलिडेट एंड डिवाइड इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट। अभी हमने बोला 1000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, अब क्या कर सकते हैं 100 शेयर 100 रुपए के, तो नॉमिनल वैल्यू बढ़ा दी और 100 तो 10,000 ही रहा। देन कन्वर्जन ऑफ फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक। स्टॉक हमेशा फुली पेड शेयर्स का होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस शेयर्स को आप स्टॉक में कन्वर्ट कर देंगे। एंड वी नो कि स्टॉक कैन बी सोल्ड इन फ्रैक्शंस, ये फायदा है। ये फ्रैक्शन वाली बात क्या होती है? इफ यू रिमेंबर, हाँ जी, आपके पास स्टॉक है जिसमें कि 10 शेयर है, क्या आप उसका 80% बेच सकते हैं? हाँ जी, 8 शेयर बेच सकते हैं। बट क्या अगर आपके पास एक शेयर है, 1 शेयर है, तो क्या आप उसका 80% बेच सकते हैं? 0.8 नहीं, पूरे का पूरा ही बिकेगा, बस यही फर्क है। एंड देन फोर्थ आपके पास ऑप्शन थी सब डिवाइड शेयर्स इनटू स्मॉलर अमाउंट। दैट मीन्स 1000 शेयर इंटू 10 था, आप 10,000 इंटू 1 भी कर सकते हैं। ओके, प्रोसीजर OR to be passed, then altered MOA to be filed with ROC within 30 days। सिंपल सा तरीका था दोस्तों ये। सो ध्यान रखने वाली बात है कि बाकी सारी ऑल्ट्रेशन में से सिर्फ एक ही ऑल्ट्रेशन थी कि ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, सॉरी ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज, जहाँ पे आप क्या पास कर रहे हो? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बाकी सब में क्या पास कर रहे हो? SR। क्यों? बिकॉज लाइबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा। Okay, friends, this was the first part of MOA AOA. Part 2 अभी आपको मिलेगा, प्लीज वॉच आउट फॉर दैट, ऑफ MOA AOA, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे द 3 डॉक्ट्रीन्स ऑफ दिस चैप्टर, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडो मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, बाय बाय।